Hello student, welcome to Gate Guruji. Gate Guruji is an online initiative by Ease Your Study exclusively made for engineers. So in this class, I'm going to start the new course that is heat transfer. What is to be studied in this class? In this class, I'm going to start. First of all, we'll understand what is the difference between thermodynamics and heat transfer. What are the syllabus for GATE examinations? And then also, we'll study what is thermal conductivity. Thermal conductivity for solid, liquid, and gases, and their mechanisms. So let's start. The course name, the heat and mass transfer, suitable for GATE IAS and PSU examination by Abhinandan Kumar Jha, M.Tech in Mechanical Heat Power, GC ICRA District Satara Maharashtra, India pin 415124. So now let's start. First of all, we'll understand in this class that what is the difference between heat transfer and thermodynamics. Particularly in third semester or fourth semester, depending upon the in which university you study. So there is a course thermodynamics, and before the heat transfer, you study the thermodynamics subjects. In fact, thermodynamics courses are introduced in the first year of engineering itself. There is a course like a basic mechanical engineering. The course name may be different for different universities, right? There are some units for the, particularly for related to the thermodynamics and heat transfer. Then introduction is also in the first year engineering itself. So here we'll discuss in detail that what is the difference between thermodynamics and heat transfer. In thermodynamics, we deal the system in equilibrium. We deal the system in equilibrium. We are concerned about how much energy is required and how much energy have been involved in bringing a system from one state to another. We are not interested in knowing that how much energy or by which rate, particularly by which rate. When I say rate, means energy per second. How much, by which rate the energy is transferred from one state to another, that is discussed in the heat transfer. But in thermodynamics, only the total energy of the system is discussed. So here, the main difference between thermodynamics analysis and heat transfer analysis of a problem is that in thermodynamics, we deal the system in equilibrium to bring the system from one equilibrium state to another. अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कहते हैं वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अदर, कोई पर्टिकुलर स्टेट में आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर एक चीज दिखा रहा हूं आपको. लेट्स सी, मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर इनिशियली एक सिस्टम है 10 kg, मैं मान रहा हूं 10 kg लेते हैं, आप 1 kg भी ले सकते हैं. 10 kg ऑफ वाटर एट 3 डिग्री सेल्सियस. ये हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस पे एक सिस्टम है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है, 10 kg ऑफ वाटर है. लेकिन हमारे पास एक दूसरा सिस्टम भी है यहां पर, जिसको हम कहते हैं, इसमें 1 kg ऑफ स्टील ब्लॉक जो रखा है 90 डिग्री सेल्सियस पे. अगर हमारे पास ये 90 डिग्री सेल्सियस पे है, सो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स हम यहां पर इसमें कितना एनर्जी था वो हम लगाते हैं. तो ये एनर्जी हम निकालते हैं एम सी पी डेल्टा टी से. सीपी किसका, तो ये जो हमने वाटर लिया है, सीपी ऑफ वाटर, और इसका टेम्परेचर इनिशियल टू फाइनल ऐसा कर लेते हैं, और यही इक्वल कर देते हैं. अगर हम इन्हें वाटर के लिए लिखा है तो हम मास ऑफ वाटर लिख देंगे, that should be equal to Cp of W,
और फाइनल टेम्परेचर इसका क्या होगा, और इनिशियल टेम्परेचर इसका कुछ 3 डिग्री सेल्सियस था। तो हम ऐसा पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, जैसे मान लो इसमें स्टील ब्लॉक है तो मास ऑफ स्टील ब्लॉक और सीपी ऑफ स्टील ब्लॉक इनटू, ये हायर टेम्परेचर पे है, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर जो है लॉस होगा, तो हम 90 डिग्री सेल्सियस माइनस कुछ टेम्परेचर यहां पर हम डाल सकते हैं। मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं कि 90 डिग्री सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर है, इसके बाद कुछ टेम्परेचर यहां पर कुछ टीएफ वगैरह आ सकता है। सो हाउ मच एनर्जी इज इन्वॉल्व in this state of, in this system, and how much energy is involved. So we are discussing the total energy content here. मतलब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें कितना एनर्जी है और कुछ समय बाद इसमें जितना एनर्जी होगा, और अगर देयर इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर ये दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि इस सिस्टम में जो एनर्जी है वही एनर्जी इस सिस्टम में भी होगी, और हम कहते हैं एनर्जी कंजर्व्ड होता है, और जो इस सिस्टम में एनर्जी है वही इस सिस्टम में एनर्जी हम इक्वेट कर लेते हैं। दैट इज पर्टिकुलरली डिस्कस इन थर्मोडायनामिक्स। बट इन हीट ट्रांसफर वी डिस्कस बाय व्हिच रेट एनर्जी इज, तो रेट जब भी कहते हैं तो जूल पर सेकेंड आता है उसमें, राइट। So, by using heat transfer analysis, at what rate the change of state occurs can be evaluated by predicting the rate of heat transfer in joule per second due to temperature difference. तो यहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस है, थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन हम जब रेट की बात करते हैं तो यहां पर कोई रेट नहीं है। अगर हम इसका अगर यूनिट लिखें तो या तो आप जूल में लिखोगे या फिर आप किलो जूल में लिखोगे। ठीक है, या तो हम जूल में लिखें या फिर हम किलो जूल में लिखेंगे। समझ आ रहा है? जैसे यहां पर हमने जूल में लिखा या फिर हमने इसको किलो जूल लिखा। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखना होता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर। बढ़ेंगे आगे। अब अगर हम आगे देखें तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है, गेट सिलेबस क्या है। तो गेट सिलेबस देखोगे तो इसमें है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहले मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ये सिलेबस दिया हुआ है। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जब भी कहते हैं तो इसमें आता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके अलावा भी एक मास ट्रांसफर है। तो मास ट्रांसफर सबसे लास्ट में छोड़ा सा, लेकिन यही 3 मोड है। ये जितना भी सिलेबस है इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर लें तो वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, मतलब हीट ट्रांसफर में, पूरे हीट ट्रांसफर में यही 3 बातें मेन पढ़ना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ही है। तो ओवरऑल अगर हमें समझना है कि हीट ट्रांसफर में क्या पढ़ना है तो हम इतना तो जान सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। लेकिन कंडक्शन में भी क्या क्या पढ़ना है। कंडक्शन हो सकता है 1 डायमेंशनल कंडक्शन, और 1 डायमेंशनल कंडक्शन में फूरियर्स लॉ आता है। फूरियर्स लॉ में फिर उसके बाद रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, स्लैब में, सिलेंडर में, स्फीयर में। ये हमें हीट ट्रांसफर के इक्वेशंस देखने हैं। 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन, 2 डायमेंशनल हीट कंडक्शन, 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन, उसके इक्वेशंस देखने हैं, सिलेंडर में, स्फीयर में, स्लैब्स में। अंडरस्टूड? एंड देन इफ देयर इज अटैचमेंट, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, करंट में आपने पढ़ा होगा कि सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर हम 2 स्लैब को अटैच कर दें, 3 स्लैब को अटैच कर दें, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर दे दें, तीसरा लेयर दे दें, तो ये कंडक्शन से रिलेटेड है। ठीक उसी प्रकार कन्वेक्शन में भी हमें 2 मेन बातें पढ़नी होती है, फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। और रेडिएशन का अपना एक कंसेप्ट है जिसमें बोल्ट्जमैन लॉ है, अलग अलग विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, अलग अलग लॉज हैं, किरचॉफ्स लॉ है। सो तो यहां पर हम ओवरऑल पढ़ेंगे तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यही 3 मेन बात है। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में कंडक्शन में मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या पढ़ना होता है। तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए सारे इक्वेशंस देखेंगे। फिर उसके बाद हम कन्वेक्शंस में जाएंगे, फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन, थर्मल बाउंड्री लेयर, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, द कनेक्शन बिटवीन HBl एंड TBl। फिर उसके बाद हीट एक्सचेंजर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर टाइप्स देखेंगे,
LMTD एंड NTU कॉन्सेप्ट, ये दो अप्रोच है, दो मेथड्स हैं। इसके बारे में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स के बारे में हम जानेंगे, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बोल्ट्जमैन्स लॉ, ग्रे सरफेस एंड रेडिएशन नेटवर्क एनालिसिस। सो दिस आर द सिलेबस ऑफ, तो मैं याद ही रहना चाहिए सिलेबस, हमें ऐसा नहीं है कि पढ़ना पड़े, इसमें हमें याद रहे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रिएक्शन। कंडक्शन में क्या पढ़ना है वो हमने बता दिया। कन्वेक्शन में दो मोड है, फ्री और फोर्स कन्वेक्शन है, इसमें HBL और TBL दिखना है, कुछ इक्वेशंस है वो हम देख लेंगे। और फिर उसके बाद रेडिएशंस में कुछ लॉज हैं, किरचॉफ्स लॉ है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, बोल्ट्जमैन लॉ है, ग्रे सरफेस है, उस पे पैरेलल प्लेट्स में कैसे उसमें हीट ट्रांसफर होगा, तो वो देखेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे डिटेल में, ये पूरा चलेगा सिलेबस। ना सवाल आता है, बच्चा पूछता है कि सर हम किताब कौन सा पढ़ें। तो अगर किताब पढ़ना ही है हीट ट्रांसफर में तो कुछ रिकमेंडेशन है, उनमें से कोई भी किताब आप पढ़ लो जो भी आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले नंबर पे रखता हूं मैं यूनिस एंजल, बहुत ही अच्छी किताब है और आप यही पढ़ें। अगर कोई किताब नहीं है इधर उधर, तो अगर सबसे बढ़िया किताब जिसे एग्जाम में भी आता है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा तो यूनिस एंजल ही है, पढ़ें। लेकिन अगर उससे भी थोड़ा सा आपको हाई लेवल में चाहिए और भी अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप इनकोब्रा डेविड भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक अच्छी किताब है। उसके बाद JP हॉलमैन है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन कम में लिखा हुआ है, तो मैं तीसरे नंबर पे इसको रखता हूं। और चौथे नंबर पे आपका RK राजपूत, इंजीनियर RK राजपूत का भी, जो कि इंडियन राइटर है, इनका भी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपको अवेलेबल है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यूनिस एंजल पहले नंबर पे है, कोशिश करें कि वही पढ़ें, फिर उसके बाद इनकोब्रा डेविड भी पढ़ लें अगर आप मन करें तो। लेकिन अगर कम से कम एक जरूर पढ़ें, प्रिपेयर करें तो यूनिस एंजल है। किताब के नाम मैंने बता दिए हैं, बढ़ेंगे आगे। अब सवाल आता कि व्हाट इज कंडक्शन। हम अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं कंडक्शन से। यहां पर हम जानेंगे कि व्हाट इज कंडक्शन, कंडक्शन होता क्या है। सो कंडक्शन इज वन ऑफ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीन होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो वन ऑफ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर और विद इन द सेम ऑब्जेक्ट, राइट, विदाउट एनी अप्रिशिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये बात होता है कंडक्शन का, यानी दो चीजों को यहां पर अटैच करके रख देंगे, एक से हीट दूसरे में चला जाता है और कोई मॉलिक्यूल का विदाउट ऐसा लगेगा नहीं कि इसमें कुछ मूवमेंट हुआ है, वो पूरा उठ के यहां पर वहां चला गया, ऐसा नहीं होता। दैट इज द कंडक्शन। सो टेक द डेफिनेशन, इट इज द फेनोमेनन ऑफ हीट ट्रांसफर और द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। देखो दो बातें हैं, फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस, या दो बातें हैं, एक से दूसरे में जाना या फिर एक ही सब्सटेंस में एक जगह से दूसरे जगह जाना, राइट, इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट एनी अप्रिशिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मिंग द सब्सटेंस। हम ये नहीं कहते कि कोई नेट जो है मूवमेंट हुआ है मॉलिक्यूल का, हाँ थोड़ी बहुत उनके बीच में मूवमेंट होता है इनसाइड में, लेकिन बल्क मूवमेंट नहीं होता कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन मान लो यहां रखा हुआ था तो वो दूसरी जगह जाके चला गया, बिकॉज हीट ट्रांसफर हुआ है। So there is a transfer of heat from one part of the object to other object, from the same object or one part of a substance or from one substance to another in physical contact with. अटैच होना चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा और एक यहां रखा, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है तो वहां पर कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर कंडक्शन करना ही है तो फिर उसके सारे कंडीशंस बहुत ही अलग होंगे, क्योंकि गैप आ गया तो इसके बीच में एयर आ गया। अब उसको मूवमेंट के लिए, इस हीट को यहां ले जाने के लिए बहुत कुछ हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो कंडक्शन इज दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ a substance or from one substance or other in physical contact with without any appreciable displacement of molecules forming the substance। समझ आ गया। तो कंडक्शन में यही बातें होती है। अब हम आगे देखेंगे, आगे बताऊंगा कि फिर कन्वेक्शन में क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है। यहां पर एक ही सबस्टेंस में, फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो कि एक रॉड है और उसको मैंने यहां से हिट करना शुरू कर दिया बर्नर से। अगर मैं इसको हिट करना शुरू करूंगा तो अब ये हीट फ्लो होकर इस एंड तक भी आ जाएगा, जो मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, मान लीजिए कि अब हमारे पास एक रॉड है यहां और मैं इस एंड पे यहां पर उसको हिट कर रहा हूं, इस एंड पे यहां पर उसमें हीट दिया जा रहा है, बर्नर से हम उसको हीट दे रहे हैं। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो यहां का कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप यहां हीट कर रहे हो इस पॉइंट पे, तो ये यहां का टेम्परेचर अगर हम नोट करें थर्मोमीटर से, यहां का टेम्परेचर अगर हम नोट करेंगे, इस एंड का टेम्परेचर क्या होगा, हम अगर नोट करें थर्मोमीटर से,
इस एंड का टेम्परेचर अगर हम नोट करें थर्मोमीटर से तो आपको इंक्रीज हुआ मिलेगा। अब क्यों मिलेगा? क्योंकि ये हीट तो यहां हुआ, या फिर आपने नॉर्मल अगर कभी देखा होगा हीट यहां पर कर रहे हैं और गर्मी यहां पर महसूस हो रही है, टेम्परेचर यहां पर महसूस हो रहा है। व्हाई? व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज द हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम वन एंड टू अदर इन द सेम सबस्टेंस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट ये है और फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो टेम्परेचर मैंने हीटिंग यहां पर कर रखी है, मैं मान लो कि हीट यहां पर कर रहा हूं, लेकिन इसका अगर इस एंड में अगर ये अटैच है तो हीट यहां से फ्लो होके इसमें भी आ जाता है और इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। मान लो कि पहले कहीं ये 220 डिग्री सेल्सियस पे था, जब हीट किया तो अब कहीं ये 30 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा या फिर 25 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच हीट इज गिवन। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्शन का फेनोमेना होता है, मैकेनिज्म होता है जो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि कंडक्शन विल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सबस्टेंस, कि वो सबस्टेंस कैसा है, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, राइट? बिकॉज the heat carrying capacity of the each substance will be different। तो यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉलिड में किस तरह से हीट ट्रांसफर होता है। इन सॉलिड हीट इज कंडक्टेड बाय टू मैकेनिज्म। व्हाट आर दोस? पहला मैकेनिज्म है लैटिस वाइब्रेशन एंड दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लैटिस वाइब्रेशन क्या है और ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जैसे प्योर जो मेटल्स है या प्योर एलिमेंट्स है, जिसमें जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, और जो अलवाइज वगैरह है उसमें लैटिस वाइब्रेशंस भी होते हैं और बहुत ही सब्टल है। आप इसको नॉर्मल ओपन आई से तो देखेंगे नहीं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अगर उसको वेरी हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन सब से देखें तो फिर हमें वो दिखाई देता है। तो आप मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता हुआ नजर आता है, जिससे हीट जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। और हमें पता है कि सॉलिड्स में चूंकि उनके मॉलिक्यूल्स काफी पास पास होते हैं, बिल्कुल अटैच होते हैं, देयर इज नो अप्रिशिएबल गैप। ये हम क्लास 7th स्टैंडर्ड से जानते हैं कि जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास हैं। तो अगर एक ने वाइब्रेट करना शुरू किया तो दूसरों को भी देता है, जो कुछ पास पास है तो ये एक से हीट ट्रांसफर फिर दूसरे में, दूसरे से फिर तीसरे में, इस तरह से पूरे में फैल जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज इन द लिक्विड एंड गैस? इन लिक्विड एंड गैसेज हीट इज कंडक्टेड बाय अगेन द टू मैकेनिज्म। दोनों में सेम होता है और उसमें होता है कोलिजन्स एंड डिफ्यूजन। चूंकि देयर इज एप्रिशिएबल गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो गैसेज में तो काफी दूर दूर होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, काफी दूर दूर होते हैं, गैप हो जाते हैं। तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि फिर गैसेज में क्या होता है और फिर लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड में गैसेज के कंपैरिजन में स्पेस कम होता है, तो इसलिए थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाता है हल्का, जो मैं बाद में बताने वाला हूं। अभी हम पहले गैसेज में देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है। तो जब हम कंडक्शन इन गैसेज कहते हैं तो गैसेज में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। होता क्या है कि अगर हमने गैसेज में हिट करना शुरू किया तो हमें मालूम है कि गैसेज में जो उसका मॉलिक्यूलर है काइनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मॉलिक्यूलर जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप हिट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसमें एनर्जी हाई हो गई, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, ये मूव करने लग गया। जैसे ये मूव करने लगता है तो ये दूसरे से टकरा जाता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल से भी टकराएंगे, जैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं। देखो, मान लो कि ये कोई सबस्टेंस है, इसमें कोई मॉलिक्यूल है, तो अब अगर यहां पर अगर आप हीट कर रहे हो तो अब ये मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये दूसरे मॉलिक्यूल से यहां से टकरा जाता है। सो हाई एनर्जी हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद द अदर टेम्परेचर, इसे कहते हैं कोलिजन। ठीक है, तो ये कोलाइड होके अपना एनर्जी फिर इसको दे देता है, अब ये तीसरे वाले को धक्का दे देता है, फिर ये चौथे पांचवें ऐसे अपने नेबर्स को। तो यहां पर जो है धक्का मुक्की होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि अपने टेम्परेचर बढ़ने से उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मूव करने लगते हैं इधर उधर, और जैसे इधर उधर वो मूव करने लग गए तो वो दूसरे से टकराते हैं, तीसरा चौथा टकराता है, एक केओस सी स्टेट हो जाती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसको हम कोलिजन और डिफ्यूजन कहते हैं। Heat conduction also occurs in gases by molecular momentum transfer when high velocity, high temperature molecules collide with very low velocity, low temperature molecules. In general, gases are very poor conductors of heat. वैसे देखा जाए इनके बीच में गैप काफी ज्यादा है। So gases are poor conductor of heat, ये हमेशा सत्य है। और एयर की थर्मल कंडक्टिविटी तो बहुत ही कम 0.024 में होता है, बहुत 0.02 वाट पर मीटर केल्विन। आगे बताने वाला हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां पर हम सीख रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल डिपेंड ऑन द सबस्टेंस,
राइट। सो वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमने गैसेस में देखा तो उसके बीच में अप्रेशिएबल गैप ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ा बहुत टहल के जाएगा, दूसरे से टकराएगा, चौथे से टकराएगा। सो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, दूसरे को दिया, तीसरे से तीसरे को दिया, चौथे को दिया, इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है कंडक्शन इन गैसेस का। As the temperature of gas increases, its thermal conductivity also increases, just like kinematic viscosity due to greater molecular momentum transfer। ये बात समझ, ये बात आपको पता है, पहले भी बताया था हमने कि जो टेम्परेचर ऑफ गैस है वो इंक्रीज होता है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी गैस की बढ़ती है और उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता। तो हम डिटेल में आपको बताने वाले कहां पर थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी और कहां पर नहीं बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले हमें यह भी तो बताना पड़ेगा कि सर थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, राइट। अभी तो हमने सिर्फ ये समझा है कि हीट अगर ट्रांसफर होगा एक एंड से दूसरे एंड में तो कैसे होगा, तो वो हमने देखा कि सॉलिड में कैसे होगा और गैसेस में कैसे होगा। सो दिस इज आल्सो काइनेटिक एनर्जी, हमने बताया था एक अलग एक्सप्लेनेशन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर। द काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इज ड्यू टू देयर random translational motion as well as their vibrational and rotational motion. These molecules are in continuous random motion, exchanging energy and motion. तो गैसेस के लिए हमने देखा कि अगर ये अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन ले लो, इतना जान लो कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती है, गैसेस की बात कर रहा हूं, और टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ती है कि इंक्रीजेस, ये यहां पर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। अभी इंफॉर्मेशन ले लो, इसका एक्सप्लेनेशन आगे आ जाएगा। अब गैसेस के केस में एक और यहां पर पैरामीटर्स होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट तो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का अलग है, हीलियम का अलग है, हीलियम का अलग है, एयर का अलग है, समझ आया। तो यहां पर आप देखेंगे कि देयर इज वन अनदर पैरामीटर दैट इज द molecular weight. The gases has the different molecular weight. We see that the hydrogen, helium and air, hydrogen has different molecular, helium and air. So here we'll see that कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी, यहां पर ये देख रहे हैं कि मैंने वाई एक्सिस पे थर्मल कंडक्टिविटी रखा है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर रखा है। सो इफ यू सी दैट द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, वो एक थिंग तो ये दैट यू कैन सी, सो थर्मल कंडक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीजिंग, ये लाइन ये बता रहा है। द सेकेंड वी कैन ऑब्जर्व दैट हियर दैट इफ द मॉलिक्यूलर वेट इज इंक्रीजेस, हाइड्रोजन से हीलियम 2 से 4, 4 से 28, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इफ द थर्मल कंडक्टिविटी if the molecular weight decreases, thermal conductivity increases. Molecular weight decreases, तो molecular weight H2 का कम है। यहां पर देखो एयर से ये कम होता जा रहा है। यहां पर अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, ये मैं दिखाता हूं आपको, so here what you see here, अगर हम एयर टू हाइड्रोजन जा रहे हैं, सो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये देखो इस रेंज पे यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी ये 0 से स्टार्ट होगा, इंक्रीज होता जा रहा है। सो थर्मल कंडक्टिविटी एंड मॉलिक्यूलर वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। नाउ व्हाट इज द कंडक्शन मैकेनिज्म इन लिक्विड्स? सो लिक्विड्स आर बेटर हीट कंडक्टर देन गैसेस। ये बात सच है, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स कंपैरिजन टू द गैसेस आर क्लोजर, राइट। So liquids are better than heat conductors than gases. Mechanism of heat transfer is similar to gases, but the molecules are closely spaced. So sometimes the intermolecular forces comes into action. ये बातें ध्यान रखना है। For liquid के केस में अगर हम देखें तो ज्यादातर केस में देखा गया है वो उल्टा होता है, गैसेस के कंपैरिजन में उल्टा होता है। ये बात ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस देन देयर विस्कोसिटी इंक्रीजेस। नाउ व्हाट अबाउट द कंडक्टिविटी? So I will give you the definition of thermal conductivity. Then I will also discuss. It will depend on the types of substances. Also there are some exceptions as well. ठीक है, जो बातें वाटर के लिए होती है वही बातें अल्कोहल के लिए भी नहीं हो सकती। So it depends upon the types of substance even in the liquid itself. We'll discuss in detail. Thermal conductivity of liquid can decreases. अगर हम thermal conductivity के बारे में बात करें, so liquid can decreases with temperature. Except water and glycerin.
तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जैसा कि गैसेज में देखा टेम्परेचर के साथ बढ़ने से वो बढ़ रहा है, लेकिन लिक्विड केस में वो डिक्रीज भी हो सकता है, एक्सेप्ट वाटर और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन और वाटर में टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वाटर द एवरग्रीन लिक्विड अवेलेबल एवरीवेयर, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। सो हियर वी सी दैट one thing is that the thermal conductivity of liquid will increase if the temperature is increased. Even that is true for the glycerin as well, but not for all the liquids. There may be thermal conductivity of liquid can decrease by increasing the temperature. बात है, ध्यान रखना है। Do you know? क्या आप जानते हैं कि among the liquid Hg has highest thermal conductivity? Okay. लिक्विड में मरकरी का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे हाई होता है, और बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। व्हाट आर दोस थ्री रीजन? फर्स्ट इज दैट हाई थर्मल कंडक्टिविटी, सेकेंड मोर एक्सपेंशन एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एंड थर्ड वेरी लो वेपर प्रेशर। So because of these three properties, mercury is the first choice by the scientist while using the mercury in thermometers. बढ़ेंगे आगे. Now it is time to discuss what is thermal conductivity. So far we have discussed that what is thermal conductivity. I have used the word, but here I will define thermal conductivity. अरे कंडक्टिविटी ही तो है जो बताता है किसी सबस्टेंस में कि वो कितना हीट कैरी कर सकता है. From thermal conductivity we can observe that the ability of the material to carry the thermal conduction, the heat. Right? So take the definition. Thermal conductivity is the property, ये property है of the material which thermal property है. Thermal conductivity is the property of the material which tells about the ability of the material, ability of the material to allow the heat energy to get conducted through it or not. जिसका जितना थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, they will allow more and more heat to carry out to pass through it. Thermal conductivity is the property of the material which tells about the ability of the material to allow the heat energy to get conducted through it. अगर थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, फॉर एग्जांपल इंसुलेटर्स का, अभी हम बताएंगे, एक डिटेल देंगे, एक लिस्ट देने वाले हैं जहां पर आप देखोगे कि किस पर्सन का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है. तो पूरे हीट ट्रांसफर में थर्मल कंडक्टिविटी का यही इंपोर्टेंस है कि हाउ मच हीट एनर्जी दे विल कैरी इट. राइट. सवाल उठता है कि सर इसको हम डिफाइन करेंगे. इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी है जो कि फूरियर लॉ से आता है, बताऊंगा थोड़ी देर बाद. फूरियर लॉ में हीट ट्रांसफर का इक्वेशन दिया था, ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके बड़े आसानी से हम पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब में, उनको पता चलता है कितना पसीना बहाना पड़ता है. दे हैव टू वेक अप, कई घंटों तक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, देन दे गिव द थ्योरीज और जो लॉज अब हम पढ़ पा रहे हैं. और रिसर्च इज द कंटिन्यूअस पार्ट, समझ रहे हो, ऑफ एनी एजुकेशन. जो फाइनल आउटपुट है वो हमें यही सिखाता है कि हम कुछ क्रिएट करें, कुछ डेवलप करें, और वो तभी हो सकता है जब हम रिसर्च करें, जब हम एक्सपेरिमेंट करें लैब में. अलग अलग मोड्स है, या हम सिमुलेशंस करके भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं. कृषि अपने जगह है, अलग बात है. राइट. बढ़ते हैं, यहां पर लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का दूसरा डेफिनेशन जो कि फूरियर लॉ से आया है. वो कहता है हीट ट्रांसफर एच, अगर हमने यहां पर लिखा, आपको मालूम है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो हीट ट्रांसफर का जो फार्मूला हो जाता है यहां पर -k इंटू dt बाई dx. ये लॉ से आया था, ये लॉ है. उन्होंने बोला था कि हीट ट्रांसफर ये जो है ये डिपेंड करता है थर्मल ग्रेडियंट पे, एरिया, परपेंडिकुलर वगैरह, बताऊंगा आगे. और के फिर वहां पर आ गया था थर्मल कंडक्टिविटी. तो यहां पर एक दूसरा डेफिनेशन आता है कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी वास्तव में Q है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, अगर उसका एरिया यूनिट हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, एंड दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट dt by dx शुड बी 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर. मतलब टेम्परेचर भी 1 में हो जाए, ये भी 1 में हो जाए, ये भी अगर यूनिट क्वांटिटी हो जाए. So at this stage I will define this thermal conductivity as the heat transfer. So that's why another definition is also there. The thermal conductivity of material can be defined as the rate of heat transfer through a unit thickness of the material per unit area per unit temperature difference. तो मतलब यूनिट थिकनेस, ये dx थिकनेस ही है,
और dt टेम्परेचर ग्रेडियंट भी 1 डिग्री सेल्सियस ले लो, एरिया भी 1 ले लो, right? So at this stage it is the heat transfer. So thermal conductivity is basically a property, and a property is defined for a unit thickness, unit temperature gradient, unit temperature difference, unit thickness. So thermal conductivity of material can be defined as the rate of heat transfer through a unit thickness of the material per unit area per unit temperature difference. Understood? So I hope so. Now you have understood what is thermal conductivity. Now at this stage your mind be clicking and want to know that what are the different thermal conductivity of different substances. चलिए एक लुक लेते हैं. इतना तो हमें पता है कि इंसुलेटर्स जो होता है, इंसुलेटर से आप थर्मल कंडक्टिंग क्लास 10th लेवल 11 12 करके आए हो, तो आपको मालूम है कि जो इंसुलेटर में जो थर्मल कंडक्टिव जो इंसुलेटर जब भी हम कहते हैं तो वहां पर उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो पूरी होती है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर में इंसुलेटर सी लगा होता है ताकि आप उसको टच कर पाते, राइट? आपको इंजीनियर से बताता है. सो इंसुलेटर्स हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. यहां पर कुछ सबस्टांस है उसका थर्मल कंडक्टिविटी देखते हैं. सबसे पहले जानेंगे दुनिया का कौन से सबस्टांस के पास सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है. तो याद रखिए ये हीरे के पास होता है, यानी डायमंड. डायमंड जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है. हालांकि आज बहुत सारे रिसर्च होते हैं, लोग आजकल अलग अलग पोर्शंस पे काम कर रहे हैं, ग्राफिन्स पे काम कर रहे हैं. ग्राफिन्स का नाम बहुत है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कंपेरेबल है डायमंड के. सम अदर कंपोजिट मटेरियल्स आर बीइंग इवॉल्व. रिसर्च जो है चल रहा है, जब आएगा तब. लेकिन किताब में स्टैंडर्ड जो आजकल आ चुका है और हर जगह यूज होता है वो है डायमंड, क्योंकि रिसर्च बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी फ्यूचर में होने वाले हैं. अभी उसका यूज नहीं है आज के जमाने में, आज के टाइम में ऐसे भी रिसर्च हो रहे हैं और होना चाहिए, कोई बात नहीं. सो इसलिए डायमंड जो है हमारा उसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, यानी 2300 इज द हाईएस्ट. उसके बाद सिल्वर 410. और ये जो मैं टेम्परेचर बोल रहा हूं ये कोई एक्यूरेट नहीं होता, ये कभी ज्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी होता है. तो मैं एक बुक से जहां से लिया हूं वहां पर ये दिया हुआ है. अगर किसी किताब में अगर सिल्वर का 405 लिखा हुआ है तो गलत नहीं है, राइट? वी शुड हैव एन आइडिया. ये जो मैंने दिया है डेटा इसको मेमोराइज मत करो, एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया दैट फॉर व्हिच सबस्टेंस इन व्हिच रेंज इट विल बी देयर. द एग्जैक्ट मे बी डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशंस वी हैव टू यूज इट. हाँ, अगर आप कहीं पर यूज कर रहे हैं, अगर डेटा दिया है, प्रॉब्लम कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, सो देयर विल बी द थर्मल कंडक्टिविटी विल बी गिवन. अगर कहीं पर अज्यूम करने की बात है, नहीं दिया है, तो आप अज्यूम करके अगर आपको इतना आइडिया रहता है तो उसके आसपास का ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर का कहीं पर 390 भी लिखा सकता है, 380 375 भी लिखा रह सकता है. सो बट एटलीस्ट आई शुड हैव एन आइडिया अबाउट ऑल दीज thermal conductivity of the different materials, where we see that diamond 2300, the silver 410, copper 385, gold 319, aluminum 200. तो यही तो सादा बार एवरग्रीन है, सोने चांदी हीरे जैसा. तो यही तो है डायमंड, हीरा, सिल्वर, चांदी, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम. यही तो मेजर जो सबस्टेंस मटेरियल है, डे टू लैब यूज करता है, चाहे वो इंजीनियरिंग किया भी हो और ना किया हो, उसको इन सबस्टेंस के बारे में अक्सर पता होता है. तो लिखेंगे गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील्स. स्टील में 17 to 45, स्टील के समान तो बर्तन हर जगह दिखाई देते हैं, राइट? मरकरी का 8 होता है, तो 8 थर्मल कंडक्टिविटी. और इसका यूनिट क्या होता है? वाट पर मीटर केल्विन. वाट पर मीटर, फूरियर लॉ से आया था, वहां भी बताऊंगा आगे, लेकिन हमें याद रखना चाहिए वाट पर मीटर केल्विन होता है. आइस का 2.25 होता है, ग्लास का 1.2, वाटर का 0.6, एयर का 0.024, थोड़ी देर पहले बताया था. यहां पर देखो एस्बेस्टस का 0.2 और फ्रियॉन 12 का सबसे कम होता है 0.0083. रिफ्रैक्टिव रिप का 1 होता है. सो व्हाई हैव डिस्कस दिस? इवन इन द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस, arranging all these on the basis of the thermal conductivity. Even the gate examinations on the PSU examinations will see that sometimes the question directly asked based on some substances will be given. इन्हीं में से कुछ दिए जाएंगे, glass, water, air, asbestos, and of course you have to arrange it. So if you have an idea of all these thermal conductivity substances, definitely you can write it. बढ़ेंगे आगे. अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स. इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी. देखो ये सारे पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन से बेस्ड है, डिपेंड है कि मटेरियल कैसा है, अलग अलग कंडीशन. क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, कहीं पर भी प्रेशर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, हमें ये जानना है. सो दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस दैट इज वेरी यूजफुल. समटाइम्स it may be asked in the objective type questions and you must know it. So thermal conductivity of a gas increases with increasing temperature and decreasing molecular weight. That you know it from the gases, I have told you already.
जहां पर हमने देखा कि अगर मॉलिक्यूलर वेट H2 से, फिर हीलियम, फिर एयर से, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर मान लो कि डिक्रीज हो रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। ये हमने देखा था। किसके लिए? गैसेज के लिए। गैसेज के लिए ऑलवेज रिमेंबर, गैस की बात कर रहे हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर एंड डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, सो K प्रोपोर्शनल टू √T/m। देख लीजिए, टेंपरेचर बढ़ने से बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से कम हो जाता है, ये दिया हुआ है। थर्मल कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एक्सेप्ट इन सम एक्सटेंट क्रिस्टलाइज्ड वैक्यूम। थर्मल कंडक्टिविटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, गैसेज का हो चाहे लिक्विड का हो, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, सम एक्सट्रीम केसेस जैसे कि वैक्यूम, जहां एयर ही नहीं है, तो वहां पर कुछ चेंजेस हो सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड कैन डिक्रीजेस विद टेंपरेचर एक्सेप्ट वाटर ग्लिसरीन। देखो, लिक्विड का डिक्रीज हो सकता है, गैसेस से अलग है, बिल्कुल अलग है, लेकिन वाटर और ग्लिसरीन को छोड़ के, ये बात याद रखना। इन प्योर मेटल्स थर्मल कंडक्शन इज डोमिनेटेड बाय इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, व्हेयरएज इन सेमीकंडक्टर इट इज डोमिनेटेड बाय लैटिस वाइब्रेशन। ये मैंने पहले भी बोला था, यहां पर लिख के दिया है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक लिक्विड्स जनरली डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर। अगर नॉन मेटेलिक लिक्विड है तो जनरली डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर। तो वैसे होता भी है कि जो लिक्विड है, चाहे नॉन मेटेलिक लिक्विड भी है, तब भी उसका डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग टेंपरेचर से। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड इज जनरली इनसेंसिटिव टू प्रेशर एक्सेप्ट नियर क्रिटिकल पॉइंट्स। ये बात ध्यान रखना है। The thermal conductivity of a substance is highest in solid phase and lowest in gas phase. ये बात, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सबस्टेंस इज हाईएस्ट इन विच फेज? सॉलिड फेज में सबसे ज्यादा होगा कि मॉलिक्यूल वहां पास होता है, हीट फटाफट फटाफट एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाते रहते हैं। इतने जरूर प्रेसिबल गैप, तो यहां कैरी कौन करेगा हीट को? भाई यहां बहुत पास में है, ये गर्म हुआ तो ऑटोमेटिकली लैटिस वाइब्रेशन या फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां से यहां तक क्या देते हैं उसके केस में, और आसानी से हीट इस सबस्टेंस से दूसरे में चला जाता है। सोचने वाली बात है, सोच कर देखना। अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछना। Thermal conductivity of substance is highest in solid phase and lowest in the gas phase. Thermal conductivity of crystalline material is more than the amorphous. यहां पर हमें देखना है कि अगर क्रिस्टलाइन है और एक एमोर्फस है जिसमें कोई जिग जैग शेप है, रैंडम शेप है, उसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, एमोर्फस है, लेकिन अगर क्रिस्टलाइन है, रेगुलर पैटर्न है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल मटेरियल इज मोर। तो जो रेगुलर पैटर्न है वो आसानी से हीट को कैरी कर सकता है, एमोर्फस में जिग जैग में परेशानी हो सकती है हीट को कंडक्ट होने में, और इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी वहां पर कम होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ग्रेटर देन दैट इट्स अलॉय। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर हमने एक अलॉय बनाया और एक प्योर मेटल है, थर्मल कंडक्टिविटी किस में ज्यादा होती है? थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इट्स अलॉय। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी। यू शुड टेक द नोट्स। ये मैंने जितना भी पढ़ाया है इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए, एक बार वीडियो को पूरा सुन लीजिए, लिख लीजिए, दोबारा सुनना हो तो दोबारा भी सुन लीजिएगा, लेकिन लिख लीजिए नोट्स, उसको फिर से पढ़ लीजिए। आपको कहीं कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या फिर आप कहीं इंजीनियरिंग पास करने के बाद आप गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, समझ आ रहा है, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर या किसी स्टेट गवर्नमेंट के जो पब्लिक पोस्ट है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना कर लेने के बाद कुछ और कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ये कोशिश आपके लिए। बढ़ेंगे आगे। तो यहां पर आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनामिक्स। अरे भाई, थर्मोडायनामिक्स में इक्विलिब्रियम स्टेट में बात करते हैं, हीट ट्रांसफर में रेट की बात करते हैं, किस रेट से एनर्जी फ्लो हो रहा है। थर्मोडायनामिक्स में ऐसा बात नहीं करते, उसमें फर्स्ट लॉ लगता है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन में हमने देखा कि कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सबस्टेंस in the same substance or from one substance to other in physical contact with without any thermal conductivity of some important substances, which is one highest, which one is lowest, that we know. Highest, Raymond. So I hope so you have understood what is the conduction, what is thermal conductivity, and how it will happen in different substances, solid, liquid and gases. In the next class I will start the new topic. I will give you the introduction of the another mode of heat transfer, that is convection, or I will start the Fourier law of heat conduction. So first I will finish the conduction chapter, then I will go for convection, right? So conduction chapter is itself a lengthy, so be tuned to us. If you are watching on YouTube, please like, subscribe and comment. Thank you. See you in the next class. So this is an initiative, Gate Guruji, by Ease Your Study.